welcome all dear students from bottom of my heart from my YouTube channel. That is Biology Exam Preparation with Nilesh Anandwani. एंड आज हम आप लोगों के सामने जो टॉपिक लेके आए हैं वो काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। वो है एनाटॉमी ऑफ अ डाइकोट एंड मोनोकोट स्टेम। हम इसके बाद जो टॉपिक देखने वाले वो टॉपिक होगा सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकोट स्टेम। ठीक है, तो ये टॉपिक आप एंड तक क्लियरली देखिए, आपको प्रॉपरली समझ में आ जाएगा। और इस टॉपिक के बाद हम सेकेंडरी ग्रोथ देखेंगे। अगर आपने ये देखा और सेकेंडरी ग्रोथ नहीं देखा तो आपके लिए पूरा वेस्टेज ऑफ पॉइंट, यू कैन वेस्टेज ऑफ पॉइंट एंड वेस्टेज ऑफ टाइम है पूरा। तो आपको दोनों पॉइंट आपने प्रॉपरली देखने चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बेसिकली डाइकोट और मोनोकोट स्टेम। तो लेट्स स्टार्ट। तो देखिए ये आपके सामने ये वाला लेफ्ट वाला जो पोर्शन है, मतलब शायद आपका राइट हो, आपने मोबाइल कैसे पकड़ा है। ये वाला जो पोर्शन है ये है डाइकोट स्टेम और ये वाला जो दिखाया हमने ये है मोनोकोट स्टेम। तो हम डाइकोट स्टेम मोनोकोट स्टेम के बारे में डिस्कस करने वाले हैं अभी। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद डाइकोट एंड मोनोकोट स्टेम इन डिटेल। तो सबसे पहले मैं आपको डाइकोट स्टेम के बारे में बताता हूँ। अगर आपको डाइकोट स्टेम प्रॉपर्ली समझ में आ गया तो मोनोकोट स्टेम समझना काफी इजी रहेगा। ठीक है, चलिए हम देखते हैं। So guys, this left one diagram is the diagram of a dicot stem. This is the sunflower and this is the monocot stem of a maize. Okay, so let's first of all I am going to teach you about the dicot stem, then we'll discuss about monocot stem. Let's start. Dicot stem, if you take a transverse section, if you take a TS or transverse section of a dicot stem, then you will find first organ that will be the epidermis, second organ will be the cortex, which is further divided into hypodermis, general cortex and endodermis. Then after cortex you will find stele organ, which is further divided into pericycle, vascular bundle and pith. Okay, so we will discuss epidermis, cortex which include hypodermis, general cortex, endodermis, stele include pericycle, vascular bundle and pith. तो हम जो देखने वाले वो पॉइंट है अभी एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, स्टेले और पिथ, ये चार ऑर्गन देखेंगे। और कॉर्टेक्स के अंदर फिर से 3 है और स्टेले के अंदर फिर से 3 है, मतलब टोटल हम 7 ऑर्गन को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलिए हम देखते हैं। एपिडर्मिस, एपिडर्मिस इज द आउटरमोस्ट लेयर ऑफ अ डाइकोट स्टेम. Epidermis is the outermost layer of a dicot stem and it produces some hair-like structure. These are hair-like structure but they are not a hair because hairs are generally present in the root called root hair. Here we called it as a trichome. 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 These are called trichome. आपने कभी कभी देखे होंगे कि स्टेम के ऊपर थोड़े छोटे छोटे हेयर के जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, लेकिन ये एक्चुअली रूट हेयर जैसे होते हैं, लेकिन रूट हेयर नहीं है, ये स्टेम हेयर है। तो स्टेम हेयर को हम जनरली कहते हैं ट्राइकोम। आप याद रखिए ये ट्राइकोम डाइकोट में अवेलेबल है, मोनोकोट में नहीं होंगे ये। ठीक है, ट्राइकोम विल बी एब्सेंट इन द मोनोकोट। चलिए, तो ये एपिडर्मिस हुआ। नेक्स्ट टू द एपिडर्मिस देयर इज अ कॉर्टेक्स इज अवेलेबल and cortex region is further divided or you can say differentiated into 3 areas, such as the first one is hypodermis, then second one is a general cortex and third one is the you can say this one endodermis. Okay, this one endodermis. So let's begin with first hypodermis. Hypodermis is the region which is located below the epidermis. Hypodermis is the region which is located below the epidermis and it is made by the several layers of a collenchymatous tissue. And as it is made by the collenchymatous tissue, this hypodermis do not show intracellular spaces because we know that collenchyma tissue is made by the more amount of a cellulose and pectin and therefore intracellular spaces is nearby absent. Below the hypodermis there is a general cortex is available. Below the hypodermis general cortex is available and it is also made by the several layers of a parenchyma, and this parenchyma generally shows intracellular spaces. As you can see, these minute gaps are available.
Why parenchyma shows intracellular spaces? We have already studied that. Just because parenchyma are made by the less amount of a cellulose and less amount of pectin. That's why they show some intracellular spaces. Next to the general cortex, there is a endodermis is located. Endodermis is the innermost region. Endodermis is the innermost region of a cortex, and it is made by the barrel shaped cells. It is made by the barrel shaped cells. Remember, this barrel shaped cells produces starch sheath, means one layer of a starch polysaccharide. Endodermis produces some, you can say starch sheath, means some sticky material. You can say the polysaccharide material called starch on the surface of a endodermis. Again, I am telling you, एपिडर्मिस के नीचे आता है कॉर्टेक्स रीजन, और कॉर्टेक्स फिर से तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है, हाइपोडर्मिस, जनरल कॉर्टेक्स और एंडोडर्मिस. क्या होता है हाइपोडर्मिस? हाइपोडर्मिस ये एपिडर्मिस के नीचे वाला हिस्सा है, और ये कोलेनकाइमेटस टिश्यू से 3-4 लेयर बनी हुई होती हैं. ये कोलेनकाइमेटस टिश्यू होने के कारण इनमें सेल्यूलोज और पेक्टिन की क्वांटिटी ज्यादा होने के कारण इनमें इंट्रासेल्युलर स्पेसेस नियर बाय डायरेक्टली एब्सेंट हो जाते हैं. और हाइपोडर्मिस के नीचे वाला हिस्सा आता है जनरल कॉर्टेक्स, जो पेरेन्काइमा टिश्यू से, पेरेन्काइमा सेल से 3-4 लेयर बनी हुई है, और पेरेन्काइमा होने के कारण इसमें सेल्यूलोज और पेक्टिन कम होने के कारण यहाँ पे इंट्रासेल्युलर स्पेसेस काफी ज्यादा होती है. और जैसे ही हम जनरल कॉर्टेक्स के नीचे देखते हैं तो हमें कॉर्टेक्स रीजन की सबसे अंदर वाली लेयर दिखाई देती है, और इस लेयर को हम कहते हैं एंडोडर्मिस. ये बैरल शेप सेल से बनी हुई है. देखिए आप, बैरल जैसे शेप है, ये सब बैरल शेप सेल्स हैं, इसे हम कहते हैं एंडोडर्मिस. और ये एंडोडर्मिस, ये जो बैरल शेप सेल्स हैं, ये स्टार्च शीट प्रोड्यूस करते हैं, मतलब स्टार्च पॉलीसेकेराइड केमिकल की एक लेयर बनाते हैं, स्टार्च शीट प्रोड्यूस करते हैं. चलिए आगे बढ़ते हैं. ओके, okay, let's move forward, guys. Next to the basically cortex region, we are moving towards the stele. Yes, what is stele? Stele is the organ which is further divided into, three sublayers, and these layers are pericycle, vascular bundle, that's called VB, and then pith region. Let's see in detail. अगर आपको ये चीजें समझ में आ गई तो आपको मोनोकोट एकदम इजी समझ जाएगा. Stele. Pericycle is the organ which is located below the endodermis and above the vascular bundle. Pericycle is located below the endodermis. देख रहे हैं आप endodermis के नीचे. Pericycle is located below the endodermis and above the vascular bundle. And this pericycle, this cover the internal vascular bundle. पेरिसाइकल एंडोडर्मिस के नीचे है और वॉस्कुलर बंडल के बिल्कुल ऊपर है, और ये वॉस्कुलर बंडल को बाहर से या तो आप कहो ऊपर से प्रोटेक्ट करता है. ठीक है, अब हम देखते हैं वॉस्कुलर बंडल. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट वॉस्कुलर बंडल. वॉस्कुलर बंडल, we have discussed that vascular bundle generally, if vascular bundle shows presence of cambium, so it will be the open type of vascular bundle. हमने देखे थे vascular bundle. So remember, vascular bundle in case of a dicot stem is a conjoint collateral open type of vascular bundle. Which one? Conjoint collateral open type of vascular bundle, and it produces cambium. And due to the presence of cambium, this help in the secondary growth in the plant body. What is secondary growth? Yes, मैं आपको एक सिंपल से सेंटेंस में बता देता हूँ. मान लो अगर कोई प्लांट की एक्सपायरी डेट 100 ईयर है, मतलब 100 ईयर तक वो प्लांट लाइव होने रहने वाला है, उसके बाद है ना उसकी डेथ हो जाएगी. तो अगर 100 साल ईयर कंप्लीट होने के बाद प्लांट को 1 साल और सर्वाइव करना है, तो प्लांट को अगर 1 ईयर और सर्वाइव करना है, तो प्लांट को एक कैम्बियम रिंग प्रोड्यूस करनी पड़ेगी. और कैम्बियम किस में से बनेगी? जाइलम और फ्लोएम के बीच में से बनेगी. तो अगर एक कैम्बियम रिंग प्लांट प्रोड्यूस करता है तो प्लांट 1 साल और जी सकता है, और अगर और एक कैम्बियम प्रोड्यूस करता है तो प्लांट 2 साल जी सकता है. और ऐसे हर साल प्लांट एक नई कैम्बियम प्रोड्यूस करते हैं. और कैम्बियम प्रोड्यूस करने के लिए वस्कुलर बंडल कौन सा होना चाहिए?
ओपन होना चाहिए। तो वॉस्कुलर बंडल जो है स्टेम में वो है कॉन्जॉइंट कोलेटरल ओपन टाइप ऑफ वॉस्कुलर बंडल, जिसके कारण प्लांट 1 साल और जी सकते हैं। तो हम सेकेंडरी ग्रोथ का टॉपिक इसके बाद में हम कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो वॉस्कुलर बंडल के बाद हम आते हैं पिथ रीजन की तरफ। सो पिथ 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 जनरली स्टेले का सबसे बड़ा, मतलब डाइकोट स्टेम में पिथ है ना काफी बड़ा होता है। डाइकोट स्टेम में पिथ काफी बड़ा होता है और उसके जो जाइलम होते हैं वो पिथ की तरफ होते हैं और फ्लोएम जो होते हैं वो पेरीफेरी के तरफ होते हैं। ये आपको सेकेंडरी ग्रोथ में भी ये चीजें काम में आएगी। जाइलम इज टुवर्ड्स टुवर्ड्स पिथ एंड फ्लोएम इज टुवर्ड्स पेरीफेरी। जाइलम इज टुवर्ड्स पिथ एंड फ्लोएम इज टुवर्ड्स पेरीफेरी। तो ये दो चीजें। तो ये था हमारा डाइकोट स्टेम। क्लियर हो गया सबको डाइकोट स्टेम? तो मोनोकोट स्टेम देखें। डाइकोट स्टेम क्लियर हो गया सबका? तो मोनोकोट स्टेम देखें। प्लीज लाइक कर दीजिए वीडियो को। कम ऑन गाइस, डाइकोट स्टेम क्लियर हो गया सबका पॉइंट? कम ऑन रिप्लाई दीजिए फास्ट तो हम आगे बढ़े। चलो, तो सबको समझ में आ गया तो हम मोनोकोट देखते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। So guys, now this is the structure of monocote. You don't have to learn the monocote just because monocote and dicots are nearby the same. Only few differences are there that I'm going to discuss with you. Dear students, आपको मोनोकोट स्टेम को पढ़ना नहीं होता है, समझना इतनी जरूर नहीं है, क्योंकि मोनोकोट और डाइकोट में सिमिलरिटी होती है। सिर्फ 4 चीजें आप लोगों को ध्यान में रखनी है, ठीक है। वो 4 चीजें ये याद रखिए। सबसे पहले, जैसे हमने देखा था डाइकोट के अंदर ट्राइकोम होता है एपिडर्मिस पे, तो मोनोकोट में एपिडर्मिस के ऊपर कोई हेयर जैसा स्ट्रक्चर ट्राइकोम कभी भी नहीं होता है, ठीक है। ये पहली बात। दूसरी बात, हमने ये देखा था कि यहाँ पे डाइकोट में जो हाइपोडर्मिस है वो कोलेनकाइमेटस टिश्यू से बना हुआ है, लेकिन मोनोकोट में हाइपोडर्मिस कोलेनकाइमा की जगह पर स्क्लेरेनकाइमा से बना हुआ होता है, ठीक है। स्क्लेरेनकाइमा से बना हुआ होता है। तो ये दूसरा डिफरेंस है। तीसरा डिफरेंस, डाइकोट स्टेम में वॉस्कुलर बंडल जो होते हैं वो होते हैं कॉन्जॉइंट कोलेटरल ओपन, ताकि ये सेकेंडरी ग्रोथ दिखा सके। लेकिन मोनोकोट के अंदर वॉस्कुलर बंडल होते हैं वो न्यूमरस, मतलब काफी ज्यादा होते हैं, और प्लस ये दिख रहा है आपको, ये सब वॉस्कुलर बंडल ही है। तो ये वॉस्कुलर बंडल की क्वांटिटी काफी ज्यादा होती है, और प्लस ये होते हैं कॉन्जॉइंट कोलेटरल क्लोज्ड टाइप, मतलब जाइलम और फ्लोएम है, लेकिन दोनों के बीच में कैम्बियम रिंग प्रोड्यूस नहीं होती है। और कैम्बियम रिंग प्रोड्यूस नहीं होती है, उसके कारण क्या होता है, मोनोकोट कभी भी सेकेंडरी ग्रोथ नहीं दिखाते हैं, ठीक है। फोर्थ मेन डिफरेंस, सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, डाइकोट में पिथ काफी बड़ा होता है, मोनोकोट में पिथ ही नहीं होता है। मतलब पिथ छोटा होता है ऐसा नहीं, मोनोकोट में पिथ ही नहीं होता है, पिथ होता ही नहीं है। तो ये है मोनोकोट। 4 डिफरेंस क्या थे? फर्स्ट, एपिडर्मिस में एपिडर्मिस में हेयर जैसा ट्राइकोम नहीं है। दूसरा, हाइपोडर्मिस स्क्लेरेनकाइमेटस से बना हुआ है। और तीसरा, वॉस्कुलर बंडल जो है वो है कॉन्जॉइंट कोलेटरल क्लोज्ड टाइप। और फोर्थ डिफरेंस है पिथ एब्सेंट है। Dear student, the difference between dicot and monocot stem is, we discussed that in a dicot stem from epidermis there is a one hair-like structure is produced. This is called trichome. In case of monocot, epidermis do not produce a trichome. This is the first main difference in monocot compared to dicot. Second thing, in dicot in dicot, hypodermis was made by colenecamatous tissue. In case of monocot, hypodermis is made by sclerenchymatous tissue. Third one, in case of dicot, vascular bundle was conjoint collateral open type, means they help in the secondary growth. Whereas in case of monocot, vascular bundles are conjoint collateral and closed type, means they do not produce a cambium ring and therefore they do not undergo secondary growth. And fourth very important difference is, in case of dicot stem, pith is a large one,
whereas in case of monocot, pith is a very small one. Pith is very small one. Okay guys, so this was the difference between dicot and monocot. I hope so आप लोगों को ये चीज, ये dicot और monocot स्टेप क्लियरली समझ गया होगा. Understood? Hello dear students, welcome back to my YouTube channel Biology Exam Preparation with Nilesh Anandwani. आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकोट स्टेम. ये काफी वैल्यूएबल टॉपिक होता है. ये काफी ऐसा टॉपिक है जो जनरली हर चीज में हर जगह पे नहीं पढ़ाया जाता है. मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये डाइकोट स्टेम में सेकेंडरी ग्रोथ पढ़ा रहा हूँ. सेकेंडरी ग्रोथ मतलब क्या, लोगों को जनरली स्टूडेंट्स को ये समझना काफी डिफिकल्ट होता है. सेकेंडरी ग्रोथ का मायने मतलब क्या होता है, पहले आप सिंपल सी चीज में समझ लीजिए. देखिए प्लांट की जो स्टेम होती है, प्लांट की जो स्टेम, कोई भी प्लांट हो, वो मोनोकोट हो या तो डाइकोट हो, सबसे पहले वो प्लांट में जो ग्रोथ होती है उसे हम कहते हैं प्राइमरी ग्रोथ. सबसे पहले जो प्लांट में ग्रोथ होती है उसे हम कहते हैं प्राइमरी ग्रोथ. मतलब प्लांट जब लेंथ वाइज बढ़ते हैं, लेंथ वाइज, तो उसे हम कहते हैं प्राइमरी ग्रोथ. लेकिन प्लांट जब गर्थ वाइज बढ़ते हैं, उनकी चौड़ाई बढ़ती है, उनकी गर्थ बढ़ती है, उनकी थिकनिंग बढ़ती है, उसे हम कहते हैं सेकेंडरी ग्रोथ. Okay guys, first thing is very important to understand what does mean by the secondary growth. When plant increase in the length, it is called primary growth. But when plant increase in the girth, when the thickening of a plant increases day by day, year by year, it is simply called as a secondary growth. अभी मैं आपको ये बता दूं कि सेकेंडरी ग्रोथ प्लांट क्यों करते हैं, उनको सेकेंडरी ग्रोथ करने की जरूरत क्या होती है. Just imagine that one plant has a you can say lifespan period of a 50 year. Lifespan period of a 50 year. So up to the 50 year, plant will show primary growth. Plant will show primary growth. What primary growth? They will have a root system. They will have a shoot system. In the shoot system, there will be different variety of parts will be there, like a number of branches, leaves, flower, pollination, fertilization, then fruit, seed, a new plant. This will continue in the single plant life up to 50 years. But after 50 years, when plant will come close to the expiry date, or you can say plant will come close to the completion of lifespan, अगर प्लांट को 1 ईयर और सरवाइव करना है तो प्लांट को क्या करना पड़ेगा, प्लांट को सेकेंडरी ग्रोथ में एंट्री करनी पड़ेगी. सेकेंडरी ग्रोथ में एंट्री करनी पड़ेगी मतलब क्या होगा, प्लांट में जो जाइलम और फ्लोएम होते हैं, प्लांट में जो जाइलम, ठीक है, जाइलम और फ्लोएम होते हैं, इन दोनों के बीच में कैम्बियम रिंग प्रोड्यूस करते हैं. ये देखिए आप यहाँ पे जाइलम दिख रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे आप देख रहे हो फ्लोएम. तो इन दोनों के बीच में प्लांट क्या प्रोड्यूस करते हैं, कैम्बियम रिंग प्रोड्यूस करते हैं, फ्लोएम और जाइलम के बीच में. अगर कैम्बियम रिंग प्रोड्यूस हो जाती है तो प्लांट की 1 ईयर की लाइफ स्पेन बढ़ जाती है. मतलब प्लांट 51 ईयर तक ग्रो करेंगे, फिर 51 ईयर तक रहेंगे. 51 ईयर कंप्लीट हो जाने के बाद अगर प्लांट को 1 साल और ग्रो करना है, 1 और साल सर्वाइव करना है, तो प्लांट क्या करेंगे, जाइलम और फ्लोएम में से फिर से एक कैम्बियम रिंग प्रोड्यूस करेंगे, तो प्लांट 52 ईयर तक जी पाएंगे. और अगर प्लांट को 1 साल और जीना है तो प्लांट और एक कैम्बियम रिंग प्रोड्यूस करेंगे. आप लोग अभी ये भी कंफ्यूज हो रहे होंगे कि मान लो अगर प्लांट की एज 50 ईयर है और प्लांट को 10 ईयर जीने तो 10 रिंग एक साथ प्रोड्यूस होगी, नहीं, हर साल एक एक रिंग प्रोड्यूस होगी. और इस रिंग को हम कहते हैं एन्युलर रिंग. एन्युलर रिंग, एन्युलर मतलब ईयर, एन्युलर मतलब होता है एन्युअल मतलब एक ईयर, और रिंग मतलब चक्र. एन्युलर रिंग मतलब इसे हम कहते हैं वार्षिक चक्र. हर साल एक ऐसा रिंग प्रोड्यूस होती है. देख रहे हैं आप, अगर आपने कहीं पे एक वुड देखा होगा, जैसे मील वगैरह में वुड होता है ऐसे कटा हुआ पड़ा हो, तो डिफोरेस्टेशन के टाइम पे जब वो वुड कटता है ना तो वुड में ऐसे रिंग्स आ जाती है, और इस रिंग्स को हम कहते हैं एन्युलर रिंग. पहले के जमाने में ऐसा होता था कि अगर प्लांट की एज कैलकुलेट करनी हो ना तो ये रिंग काउंट करते थे. लेकिन आज, और रिंग काउंट करने के लिए उन्हें स्टेम को कट करना पड़ता था, लेकिन आज ऐसा नहीं. अगर स्टेम को कट करोगे, किसी प्लांट की एज पता करने के लिए अगर आप प्लांट को कट करना पड़े तो क्या फायदा हो उसका, ठीक है, वो टेक्निक का फायदा ही क्या.
तो आजकल जो टेक्निक है वो कार्बन डेटिंग से हमें पता चल जाता है प्लांट की एज कितनी है, लेकिन जनरली कार्बन प्लांट के अंदर जितनी भी रिंग होती है ना उतना प्लांट की एज होती है, ठीक है। तो एक रिंग मतलब एक साल, 500 रिंग है मतलब 500 साल प्लांट पुराना है, ठीक है। मैं आपको ये अंदर का जो बारीक चीज है ना एकदम छोटी सी, ये जूम करके ये बताई गई हुई यहाँ पे, मैं आपको वो चीज समझाने वाला हूँ। तो फिर से आप लोग ये चीज समझ गए होंगे। सेकेंडरी ग्रोथ मीन्स, secondary growth is nothing but when the plant increases in a girth wise, not in a length wise. When a plant increases in a girth wise, plant is undergoing secondary growth each and every year. And how it is undergoing each and every year secondary growth? When plant is producing annular ring through the cambium. अभी मैं आपको बता दूं कि कैम्बियम क्या होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं। सेकेंडरी ग्रोथ जनरली डाइकोट स्टेम ही बताते हैं। सेकेंडरी ग्रोथ इज जनरली शोन बाय द डाइकोट स्टेम ओनली, एंड व्हेन डाइकोट स्टेम शोज सेकेंडरी ग्रोथ, that time between xylem and phloem cambium ring is produced, and it is only available when you have conjoint collateral and open type of a vascular bundle। मतलब अगर प्लांट में conjoint collateral और open type of vascular bundle है तो ही वो प्लांट सेकेंडरी ग्रोथ दिखाएंगे, अदरवाइज नहीं दिखाएंगे। ओपन वास्कुलर बंडल होगा, ओपन मतलब जाइलम और फ्लोएम के बीच में अगर कैम्बियम है तो ही वो प्लांट सेकेंडरी ग्रोथ दिखाएगा, नहीं तो सेकेंडरी ग्रोथ वो नहीं दिखाएगा, ठीक है। अब आपको मैं इस डायग्राम में समझाता हूँ। सो मैंने आपको पहले ही अभी डाइकोट स्टेम पढ़ाया था, मैंने उसमें आपको एक चीज बताई थी कि जाइलम कभी भी पिथ की तरफ होते हैं, मतलब सेंटर की तरफ, और फ्लोएम कभी भी बाहर की तरफ होते हैं, ठीक है। फ्लोएम इज एक्सार्च, एक्सार्च मींस आउटसाइड टुवर्ड्स एपिडर्मिस, एंड जाइलम इज एंडार्च मींस टुवर्ड्स पिथ। Phloem is towards periphery, outside, exarch. Xylem is towards pith, inside, endarch. And between xylem and phloem there is a cambium ring. ठीक है, तो ये देखिए ये है, ये वाला पोर्शन है phloem, ठीक है। और जाइलम हमने कहाँ बताया हो, तो ये देखिए ये जाइलम, फिर वो अर्ली जाइलम हो या लेट जाइलम हो, मैं आपको अर्ली और लेट का मतलब समझाता हूँ, डोंट वरी। और उनके बीच में क्या होता है, ये कैम्बियम रिंग, ये देखिए आपको ये कैम्बियम रिंग दिख रही है। इस कैम्बियम रिंग को जनरली हम एन्युलर रिंग भी कहते हैं क्योंकि हर साल एक कैम्बियम रिंग आती है, और इसको ही हम कहते हैं ग्रोथ रिंग। ये देखिए ये जो लाइनिंग्स है ना, ये एक, ये हुई दो, ये हुई, देखिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये तो हम प्रॉपरली डायग्राम में देख रहे हैं, इसके लिए 6 लगा, लेकिन अगर हम इसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जूम करके देखें तो पता नहीं कितनी सैकड़ों रिंग्स दिखेंगी हमें यहाँ पे। सो वी कांट इमेजिन, हम डायग्राम से इमेजिन नहीं कर पाते, ठीक है। तो चलिए अब सेकेंडरी ग्रोथ की कुछ बातें डिस्कस कर लेते हैं। when cambium ring is produced from or produced between primary xylem and primary phloem, it is called intrafascicular cambium। अगर कैम्बियम प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम के बीच में से प्रोड्यूस होता है तो उसे हम कहते हैं इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। और ये इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम में मेरिस्टेम टिश्यू होते हैं, और मेरिस्टेम टिश्यू होने के कारण ये सेल डिवीजन फास्टली करते हैं, और सेल डिवीजन करने के कारण फिर से एक नया कैम्बियम प्रोड्यूस करते हैं, जिसे हम कहते हैं इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। यस, फिर से सुन लीजिए, between the primary xylem and primary phloem। what is primary xylem, what is primary phloem? मतलब प्लांट में जो पहले xylem और phloem होते हैं ना, उन्हें हम कहते हैं primary xylem और primary phloem। between the primary xylem and primary phloem cambium ring is produced। this cambium ring is called intrafascicular cambium। which one? Intrafascicular cambium। and from this intrafascicular cambium a new from this intrafascicular cambium meristem tissues are starting dividing, and when this meristem tissues start dividing they produce another cambium called interfascicular cambium। so primary xylem और primary phloem से क्या प्रोड्यूस होता है? इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, जिसमें मेरिस्टेम होने के कारण सेल डिवीजन होता है, और सेल डिवीजन होने के कारण फिर से एक नया कैम्बियम बनता है जिसे हम कहते हैं इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। एक चीज याद रखिए,
स्प्रिंग सीजन में, स्प्रिंग सीजन का मतलब क्या होता है जनरली, रेनी सीजन में, ठीक है। तो रेनी सीजन में क्या होता है, जाइलम टिश्यू जो होते हैं वो थोड़े स्पीड में काम करते हैं। तो जाइलम टिश्यू सबसे जल्दी बन जाता है, तो इसे हम कहते हैं अर्ली जाइलम या तो अर्ली वुड। क्या कहते हैं इसे, अर्ली जाइलम या तो अर्ली वुड। लेकिन वही विंटर सीजन में, मतलब ऑटम सीजन में, ठंडियों की सीजन में जाइलम लेट प्रोड्यूस होता है अपने रेगुलर टाइम से। मान लो जाइलम का प्रोड्यूस होने का टाइम है 2 महीने, तो बारिश के टाइम में 2 महीने की जगह पर ही 1 या 1.5 महीने में प्रोड्यूस हो जाएगा। इसे हम कहेंगे अर्ली जाइलम या तो अर्ली वुड, क्योंकि जाइलम को हम वुड भी कहते हैं, लकड़ा। और वही ठंडियों की सीजन में जाइलम है ना लेट प्रोड्यूस होता है, तो इसे हम कहते हैं लेट जाइलम या तो लेट वुड। समझ गए आप, आर यू गेटिंग? In case of a spring season, in case of a rainy season, xylem produces before the time. That is called early xylem or early wood, because xylem is also known as a wood. But in case of a winter season, in case of a autumn season, xylem produces a late. That's why it is called as a late wood, or you can say late xylem. Okay, guys. Two things I am going to tell you, which is very important for you. अगर आपको कभी किसी ने एग्जाम में पूछ लिया तो आप समझ नहीं पाओगे वो चीज क्या होती है। देयर आर टू टाइप ऑफ वुड, वन इज अ सैप वुड, सेकंड वन इज हार्ट वुड। हार्ट वुड, हार्ट, ह्यूमन हार्ट कैसे होती है वैसे स्पेलिंग, HEART, हार्ट वुड और सैप वुड। अभी आप ये देखिए प्लांट का वुड है, ठीक है। मान लो सेंटर का पूरा पोर्शन टेनिन, कोलोइड, अल्कोलॉइड ऑयल इनसे भर जाता है, तो ये पूरा का पूरा एरिया ना डार्क हो जाएगा और इसमें से पूरा का पूरा मटेरियल ट्रांसपोर्टेशन बंद हो जाएगा। तो इसे हम कहते हैं हार्टवुड, हार्टवुड। लेकिन हार्टवुड के आसपास में जो एरिया होता है वो काफी लाइट कलर में होता है, और लाइट कलर में होने के कारण यहाँ से सब मटेरियल, मतलब वाटर, मिनरल, फूड मटेरियल नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे ट्रांसफर होते रहता है। तो इस प्रकार के वुड को हम कहते हैं सैप वुड, SAP, सैप वुड। सैप का मतलब ही होता है सैप का मतलब ही होता है वाटर और मिनरल, ठीक है। तो सेंटर का पूरा पोर्शन डार्क होता है, इसके लिए हम इसे कहते हैं हार्ट वुड, और आसपास का पूरा पोर्शन होता है सैप वुड। हार्ट वुड में से कोई भी मटेरियल ट्रांसफर नहीं हो सकता और सैप वुड में से मटेरियल ट्रांसफर हो सकता है। लेकिन मान लो ये जो आसपास का लाइट कलर का एरिया है सैप वुड, अगर ये भी अल्कलॉइड, टेनिन या तो आप कहो कि ऑयल इनसे भर जाता है, तो ये वाला पूरा हिस्सा भी, सॉरी, ये वाला पूरा हिस्सा भी डार्क हो जाएगा। तो प्लांट क्या हो जाएगा, प्लांट की बॉडी डेथ में चले, प्लांट डिक्लाइन फेज में चले जाएंगे और प्लांट की डेथ हो जाएगी। ओके गाइस, अभी आप ये जो देख रहे हो ये कोर्क कैम्बियम होता है, ये इंट्राफेसिकुलर इंटरफेसिकुलर के टाइप होते हैं। तो आई होप आपको ये समझ गया होगा। फिर से देखिए मैं एक बार सिंपल चीज बता देता हूँ। Generally, at the center of the plant body, due to the deposition of alkaloid, tannin, and you can say oil, some material, this area becomes a total dark and transportation becomes a fully stop. This is called heartwood. But the area surrounding to the heartwood is a slightly lighter in color because it is not deposited due to such chemical. It is called sapwood. But if sap would also turn into the hardwood, then plant will undergo death because this full area will be blocked. So this is what secondary growth in the plant body. Understood?